Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, some natural phenomena. Learning objectives. Lightning, how lightning occurs, prevention from lightning strike, earthquake, what causes an earthquake, measuring earthquake, protection against earthquakes. A natural phenomenon is the one which continuously occurs in nature without the involvement of human beings. These are not under our control. Some of them are beneficial for us, but some cause heavy loss of life and property. We have learned about winds, storms and cyclones and the destructions caused by them. Now, we shall discuss two other destructive natural phenomena, lightning and earthquakes, and what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. देखिए नेचुरल फिनोमेना आपको पता है जिसकी वजह से जो आपका नेचुरली होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम दो ऐसे ही नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे जो है आपके लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। Lightning is a bright flash of electrical discharge produced along with a thunderstorm. It is one of deadliest natural phenomenon which kills and injures many people. Lightning is caused due to friction between the wind and clouds. Because the friction clouds get electrically charged, the charge thus developed is the electrostatic charge. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, proved that due to friction between the clouds and winds, clouds get electrically charged. There is electric discharge between the clouds. This produces a spark which we see as lightning. He conducted the kite experiment. He flew a kite in a thunderstorm and tied a key in the string at the other end. He proved that electrical charges from the clouds flowed through the wet strings to the key as the key when touched by a metal rod produced sparks. लाइटनिंग आपने देखा है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है या बारिश आने से पहले लाइटनिंग होती है, एक ब्राइट फ्लैश आपका होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का, और ये आपका बहुत ही डेडलीस्ट नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है मर जाते हैं या इंजोर हो जाते हैं। लाइटनिंग क्यों होती है? जब फ्रिक्शन होता है बिटवीन द विंड एंड द क्लाउड्स, तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और जो चार्ज डेवलप होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया था कि फ्रिक्शन जो होता है क्लाउड्स एंड विंड्स की वजह से के बीच में, तो क्लाउड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है क्लाउड्स के बीच में, इसकी वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो एज अ लाइटनिंग हम देखते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, काइट एक्सपेरिमेंट। जब थंडर स्टॉर्म हो रहा था तो वो पतंग उड़ा रहे थे और उन्होंने क्या किया था, जो धागा होता है यानी स्ट्रिंग जो होती है उसके एक एंड पे की बांध दिया था। तो उन्होंने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो क्लाउड से फ्लो हुए स्ट्रिंग में एंड देन वो आपके कहाँ तक आए, की तक। और जैसे कि जो कि मेटल रॉड से बना हुआ है, तो क्या हुआ कि जैसे उसको टच किया गया उसमें से आपकी स्पार्क्स प्रोड्यूस हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन proved that lightning was an effective form of electricity and electricity is a flow of charges through a conductor. But what is an electric charge? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूव किया कि लाइटनिंग एक्चुअल में एक फॉर्म हो इलेक्ट्रिसिटी का एंड इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। बट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Nature of charges. When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge and the scale attracts small pieces of paper. This happens due to the electrical charges developed by the scale. These objects are called charged objects. In the process of charging, the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. देखिए कोई प्लास्टिक की रिफिल आप उसको रब करेंगे पॉलीथीन के साथ तो उसमें एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज वो एक्वायर कर लेगा। इसी तरह से जब आप क्या करेंगे, प्लास्टिक कॉम को रब करेंगे अपने ड्राई हेयर में, तो उसमें भी छोटा सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा और जो स्केल है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपके डेवलप हो गए हैं बाय द स्केल। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। Activity 1. To understand nature of charges. Take two inflated balloons and hang them close to each other using separate strings. Rub each balloon with a woolen cloth. Both the balloons will repel each other because they have been rubbed with the same woolen cloth. In other words, the balloons acquire the same charge. Now take a
Use refill. Rub the refill with a plastic bag and place it in a tumbler. Now take one of the balloons and rub it with a woolen cloth. Bring it close to the refill and the tumbler. What happens now? In this case, the balloon and refill have been rubbed with separate objects, that is woolen cloth and plastic bag respectively. Since both the objects carry different charges, they attract each other. This activity shows that unlike charges attract each other while like charges repel each other. अच्छा देखिए आपको क्या करना है, दो इन्फ्लेटेड बलून्स लेने हैं, दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग से हैंग करना है. अब क्या करना है, दोनों को ही रब करना है वुलन क्लॉथ के साथ. तो अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दैट मीन्स दोनों में सेम चार्ज होगा. सेम चार्ज क्यों होगा, क्योंकि दोनों को सेम मटेरियल से रब किया गया है, राइट. अब क्या करना है, एक यूज रिफिल लेनी है. अब उस रिफिल को आप प्लास्टिक बैग के साथ रब करेंगे एंड देन उसको टम्बलर में आप इस तरह से रखेंगे, राइट. अब आप एक बलून ले लीजिए और उसको रब करेंगे किससे, वुलन क्लॉथ से. फिर आप क्या करेंगे, रिफिल को आप जो अपने जो बलून को रब किया वुलन क्लॉथ को, उसको रिफिल के पास लेके आएंगे जो टम्बलर में. तो इस केस में क्या होगा, बलून एंड रिफिल को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से रब किया गया है ना, यानी कि आपका वुलन क्लॉथ एंड प्लास्टिक बैग. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में आपके क्या होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे. तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ से क्या शो होता है, ये आप पहले भी पढ़ के आएंगे, दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. Thus, we can conclude that there are two types of charges, positive charge and negative charge. Two bodies repel each other if they have like charges, either positive or negative. Two bodies attract each other if they have unlike charges, if one is having a positive charge and the other will have a negative charge. The charges which are produced by rubbing two objects are called static charges. When these static charges flow, they form electric current. The force exerted by charged objects on each other is called electrostatic force. देखिए दो तरह के चार्जेस हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दो बॉडीज जिनमें सेम चार्ज है, यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर दोनों में डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज, राइट. एंड आपके जो स्टैटिक चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म करते हैं. और जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है इन चार्ज ऑब्जेक्ट्स के द्वारा उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक force. Methods of charging a body. If one object loses electrons, the other object gains it. In this process, both the objects are charged. There are various methods of charging a body that is electrically neutral. देखिए किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या मेथड है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें. क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा. तो इस प्रोसेस में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं. Charging by friction. When two bodies are rubbed together, the free electrons are transferred from one body to the other. On rubbing, the body which gains free electrons becomes negatively charged and the body which loses free electrons becomes positively charged. Charging by conduction. If we bring an electrically charged body close to an uncharged body, the charges will flow from the charged body to the uncharged body through conduction. This method of charging is used to charge objects that are conductors of electricity. The body that is being charged will acquire the same charge. अब देखिए दो मेथड्स हैं आपके. सबसे पहले फ्रिक्शन. जब आप दो बॉडीज को रब करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं. रबिंग से क्या होता है कि बॉडी जो गेन कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एंड जो लूज करेगी वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. और कंडक्शन के मेथड में क्या होता है कि इसमें हम एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास. तो जो आपका जो चार्जेस हैं वो फ्लो कहाँ से करेंगे, चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी, कंडक्शन के थ्रू. तो इस मेथड में क्या होगा कि आपका जो बॉडी जिसको चार्ज किया जा रहा है वो सेम चार्ज को अक्वायर करेगी, राइट. ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the electrons in the glass rod are transferred to the silk. This is because in glass the electrons are less tightly bound than in silk. Thus, due to loss or deficit of electrons, the glass rod becomes positively charged, while due to gain of equal number of electrons, the silk becomes negatively charged. Similarly, when an ebonite rod is rubbed with fur, the electrons from the fur are transferred to the ebonite rod and therefore the ebonite rod becomes negatively charged due to gain of electrons, while the foam becomes equally
positively charged due to deficit of same number of electrons. We can transfer electrical charge from a charged body to a neutral body through conductors. Charges developed on a body can be detected by an electroscope. अब देखिए, जब आप एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क में. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके लेस टाइटली बाउंड हैं आपके ग्लास रॉड में देन इन सिल्क. इससे क्या होगा? लॉस होगा या डेफिसिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा. तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वाइल आपका जो सिल्क क्लॉथ है क्योंकि उसने गेन किए हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. इसी तरह से जब आप एबोनाइट रॉड को रब करेंगे फर के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर से ट्रांसफर होंगे एबोनाइट रॉड में. इसीलिए एबोनाइट रॉड जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. एंड फर जो है आपका, उसमें कौन सा आ जाएगा? इक्वली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट. तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में कंडक्टर्स के थ्रू. एंड चार्ज जो किसी भी बॉडी में डेवलप्ड होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप. डिटेक्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. Electric charges can be transferred from one charged object to another object through a conductor. Based on this principle is a device called electroscope. An electroscope is a device that is used to test whether an object is carrying a charge or not. To know the working model of an electroscope, let us do an activity. अब देखिए, यहाँ से तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, राइट. अब देखिए, तो इस प्रिंसिपल पे एक डिवाइस काम करता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप. सो लेट्स चेक इट आउट दिस एक्टिविटी. टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट, cut a piece of cardboard bigger than the mouth of the jar. Use a sharp pointed metal rod to pierce a hole in the middle of the cardboard. Hang a paper clip with the help of a thread as shown through the cardboard lid. It should be perpendicular to the jar. Cut 2 strips of aluminium foil. Hang them on the paper clip. Charge the glass rod by rubbing its one end with silk cloth and touch the end of the paper clip. The 2 aluminium strips move away from each other when the metal clip is touched with the charged glass rod. When we touch the top of metal paper clip with positively charged glass rod, some of its positive charge is transferred to the metal clip. The metal clip in turn transfers the positive charge to the 2 aluminium strips. In this manner, both aluminium strips get positively charged. Since 2 like charges repel each other, the aluminium strips move away from each other. अब देखिए, आपको डिटेक्ट करना है चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज आपका प्रेजेंस है, मतलब उसमें चार्ज, वो चार्ज है भी या नहीं है. सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड का पीस काटना है. देखिए, जो ग्लास जार है ना, इसके माउथ से बड़ा होना चाहिए. इसके बाद आपको एक शार्प पॉइंटेड मेटल रॉड लेनी है जिससे कि इसके मिडल में एक होल किया जा सके, उसको पियर्स किया जा सके. नाउ आपको पेपर क्लिप हैंग करना है विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है, राइट. थ्रेड की हेल्प से आपको यहाँ पे मेटल क्लिप है आपका, राइट. एंड देन ये आपके जार के परपेंडिकुलर होना चाहिए. 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स को कट करना है और पेपर क्लिप में उसको हैंग करना है इस तरह से जैसे आपको दिखाया गया. अब आपको क्या करना है? ग्लास रॉड को चार्ज करना है. एक एंड को कैसे करेंगे? सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है. एंड फिर आपको क्या करना है? टच करना है द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. जो 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं आपकी, ये क्या होंगे? दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर जब मेटल क्लिप टच हुआ चार्ज ग्लास रॉड के साथ. अच्छा, अब क्या होगा कि जब हम जो टॉप है उसको टच करेंगे मेटल पेपर का पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के साथ, तो कुछ उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा मेटल क्लिप में. यानी कि मेटल क्लिप अब बदले में क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स में. इस तरह से जो आपकी जो दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. एंड आपको पता है क्योंकि 2 जो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं दे विल मूव अपार्ट, यानी कि दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. Now run a plastic comb in your hair and touch the charge comb to the metal clip with it. The plastic comb transfers negative charges to both the aluminium strips. So the 2 aluminium strips become negatively charged and they repel each other once again. अब आपको क्या करना है? प्लास्टिक कॉम से आपको बालों पे रब करना है. तो अब क्या करना है? अब आपकी जो कॉम है वो चार्ज हो चुकी है. आप उसको टच करेंगे मेटल क्लिप के साथ. जो प्लास्टिक कॉम है वो नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगी दोनों में एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स के साथ. दोनों आपके नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और फिर से वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. अर्थिंग. If we touch the metal clip with the finger, the aluminium strips
collapse. This is because the charge flows from the aluminum strips through the body into the earth, causing them to collapse. This process of transferring charge from a charged body to the earth is called earthing. देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप मेटल क्लिप को टच करते हैं अपनी फिंगर के साथ, तो आपकी जो दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चार्ज है वो फ्लो करेगा आपका एल्यूमिनियम स्ट्रिप से थ्रू द बॉडी इनटू द अर्थ, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका चार्ज ट्रांसफर होता है किसी चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग. How lightning occurs. Lightning occurs during a thunderstorm. Lightning is caused due to electrical discharge. Within a thunderstorm, there are many small bits of ice. As the cloud moves, frozen raindrops collide with each other and become electrically charged due to friction. The positive charges form at the top of the cloud and all negative charges settle at the bottom of clouds. After some time, these negative charges are attracted by positive charge on earth and the other clouds. Due to sudden movement of negative charge, a narrow streak or path of electric discharge is formed. The charge can be between two clouds or a cloud and earth. This discharge is seen as lightning on earth. देखिए लाइटिंग आपका कब होती है? थंडरस्टॉर्म के दौरान, राइट? और लाइटनिंग आपकी होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. तो देखिए आपका क्या होता है कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो बहुत छोटे छोटे बिट्स होते हैं आइस के, तो आपके जो क्लाउड्स जैसे मूव करते हैं तो आपके जो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, जैसे आपका क्लाउड है, दिस इज योर क्लाउड, तो जो आपका टॉप पार्ट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. क्लाउड का जो टॉप पार्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड इसका जो बॉटम है, आपका जो क्लाउड है बॉटम है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, राइट? तो क्या होगा, कुछ कभी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपके जैसे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्या, अब क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन अर्थ या दूसरे क्लाउड्स में. तो जब ये सडन मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज का, एक नैरो सी स्ट्रीक या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का पाथ बनता है. तो जो डिस्चार्ज है ये हो सकता है दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है या फिर क्लाउड एंड अर्थ के बीच में भी हो सकता है. और उसके बाद ये जो डिस्चार्ज होता है, ये जो लाइटनिंग होती है दैट इज द डिस्चार्ज जो हमें अर्थ से नजर आती है. A huge spark between the clouds is thus formed. This spark is called lightning. The sparking discharge from one cloud to the other lasts for a very short period of time, but it releases a tremendous amount of heat and light. तो देखिए उसके बाद एक ह्यूज स्पार्क बनता है आपके क्लाउड्स के बीच में, राइट? और इस स्पार्क को हम लाइटनिंग कहते हैं. जो स्पार्किंग डिस्चार्ज होता है एक क्लाउड से दूसरे पे, वो एक्चुअली बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बट इस टाइम पे इतना शॉर्ट पीरियड के वजह बावजूद भी इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आपकी प्रोड्यूस होती है. Why do we hear a thunder? Lightning heats up the air around it. This heat makes the air expand suddenly and waves of vibrations take place. This rapid expansion of air sends a disturbance produced as sound and heard as thunder. During a thunderstorm, lightning and thunder occur together. However, we see a flash of lightning first and hear the thunder afterwards. This is because light travels faster than sound. अब देखिए क्या होता है कि लाइटनिंग जो है वो एयर को हीट अप कर लेती है ना? तो ये जो हीट है ये क्या करती है, इससे एयर एक्सपेंड हो जाती है सडनली एंड देन आपके जो वाइब्रेशंस, वेव्स ऑफ वाइब्रेशंस आपके होते हैं. तो जो रैपिड एक्सपेंशन होता है एयर, वो एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, राइट, एज साउंड, एंड हमें फिर वो एक थंडर के रूप में सुनाई देता है. अब थंडर स्टॉर्म के दौरान क्या होता है, लाइटनिंग एंड थंडर जो है आपका वो तो होते तो साथ हैं, बट हमें लाइटनिंग पहले नजर आती है एंड थंडर उसके बाद सुनाई देता है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स faster than sound. Remember that. Precautions to take during lightning. Lightning is actually electric discharge. If it reaches Earth's surface, it is called a lightning strike. The lightning strike causes heavy loss of life and property. Since lightning cannot be controlled by human beings, we can only take preventive measures to reduce the damage caused by lightning strike. Some do's and don'ts for this purpose are: अब देखिए लाइटनिंग जो है आपका एक नेचुरल फिनोमेना है, हम इसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग. इफ यू डू गेट स्टक आउटसाइड, इमीडिएटली सीक शेल्टर इन अ व्हीकल और अ बिल्डिंग. अगर आप बाहर हैं तो आप क्या करेंगे, कहीं बाहर हैं तो आप इमीडिएटली शेल्टर ले लीजिए किसी भी व्हीकल के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर. शट ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ द व्हीकल टू रिमेन सेफ एंड डू नॉट touch the metallic frame of the windows and doors to avoid getting a shock. Do not come out till much after the last thunder is heard.
अगर आप व्हीकल के अंदर है तो उसके आप विंडोज़ को क्लोज कर देंगे और किसी भी मेटालिक फ्रेम को जो आपके विंडोज़ को उसको टच ना करें या ना ही डोर को टच करें, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड कर सकते हैं. Do not stand under a tall tree. If it's struck by lightning, the tree can catch fire. If you are standing in an open ground, do not lie down. Squat down with hands on the knees and head between the hands. This position is the safest as it makes one a very small target to be struck. Do not open umbrella that have metallic handles. The metal rod can conduct electricity, which can be fatal. When inside a building, avoid using electrical appliances, metal pipes or wires. Do not bathe or put your hand under running water as it may conduct electric current. देखिए, अगर कोई लंबा सा पेड़ है, टॉल ट्री है, उसके नीचे आप खड़े नहीं होंगे क्योंकि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो पेड़ में आग लग सकती है. अगर आप ओपन ग्राउंड में खड़े हैं तो आपको लाई डाउन नहीं करना है, इंस्टेड आपको स्क्वाट डाउन करना है. आपको अपना क्या करना है, हेड जो है अपने हैंड्स के बीच में रखना है, राइट. ये सेफेस्ट पोजिशन होती है. अम्ब्रेला कभी भी ओपन ना करें जिसका मेटालिक हैंडल हो. और जब भी आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ नहीं करना है, राइट. और आपको मेटल पाइप्स एंड वायर्स इनको भी यूज़ नहीं करना है. इस दौरान आप नहाए नहीं और रनिंग वाटर के नीचे अपना हाथ बिल्कुल ना रखें बिकॉज इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. Lightning conductor. Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effects of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its constructions. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electric charges to the ground. The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent. This system of protecting electric wires and equipment from damage caused due to sudden high fluctuations in electric current is called earthing. It also reduces the risk of an electric shock. The idea of lightning rod was also developed by Benjamin Franklin. Although lightning strike is very dangerous, yet lightning does have two advantages also. Lightning converts atmospheric nitrogen into plant-consumable nitrogen compounds. Lightning converts atmospheric oxygen into ozone, the protective blanket around Earth's atmosphere. देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है जो बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है. ये एक मेटालिक रॉड होता है, आपका बिल्डिंग से टॉलर होता है और ये बिल्डिंग के टॉप पे ये इंस्टॉल किया जाता है, राइट, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है. अब इसका जो दूसरा एंड होता है इस रॉड का, वो आपका होता है डीप अंडर द ग्राउंड. इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना आपके, वो डिस्चार्ज होकर सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे. आपके जो मेटल कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, या इलेक्ट्रिक वायर्स या वाटर पाइप्स हैं आपकी बिल्डिंग्स में, ये भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं, राइट. तो ये जो सिस्टम होता है प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर्स या इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज जो आपका सडन हाई फ्लक्चुएशंस की वजह से हो जाता है, इसे कहते हैं अर्थिंग. और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क को भी रिड्यूस करता है. ये आइडिया जो था ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही था. अच्छा देखिए, लाइटनिंग स्ट्राइक डेंजरस तो है बट ये साथ ही साथ थोड़ा सा बेनिफिशियल भी होता है. कैसे? सबसे पहले जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है कंज्यूमेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में से. दूसरा, लाइटनिंग क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको ओजोन में कन्वर्ट करता है. और आपको पता है ओजोन लेयर हम सबके लिए कितनी यूजफुल है. Do you know the study of lightning is known as phenomenology and the fear of lightning is called astrophobia. Lightning की स्टडी को कहा जाता है phenomenology and fear of lightning को कहा जाता है astrophobia. Earthquake. Earthquake is a natural phenomenon which can still not be predicted. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. अर्थक्वेक भी आपका नेचुरल फिनोमेना है जिसको आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट. और आपको पता है अर्थक्वेक कहता है कि सडन शेकिंग, ये अर्थ में सडन जो ट्रेम्बलिंग होता है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपका रहता है. समटाइम्स द magnitude of the earthquake is so high it causes a large scale destruction to life and property. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. They can be a great loss to life and property. Earthquakes can cause floods, landslides and tsunamis. देखिए, कई बार क्या होता है कि earthquake का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हाई होता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. हालांकि जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं ये लेस फ्रीक्वेंट होते हैं क्योंकि और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है. बिल्डिंग्स, डैम्स, पीपल, ब्रिजेस सब कुछ तबाह हो जाते हैं. इसके अलावा जो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स या सुनामी भी आती हैं. व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक?
earthquake is caused by a disturbance deep inside the Earth's crust. The tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the Earth called the crust. To understand earthquakes better, let us learn a little more about the structure of the Earth. तो earthquake को समझने के लिए सबसे पहले हमें Earth के structure को जानना बहुत ज़रूरी है. Structure of the Earth. Earth is made up of 3 important layers. These layers are crust, the outermost layer, mantle, the middle layer, and the core, the innermost layer. इन 3 layers के बारे में आपको पता है, right? आप ये previous class में भी पढ़ के आए होंगे. The outermost layer of the Earth is not in one piece. It is fragmented. Each fragment is called a plate. In other words, it is made up of a number of interlocking plates of rocks. These plates are in continual motion. These plates are called tectonic plates. These plates float on a layer of molten matter. When these plates collide with each other, it results in strong vibrations or tremors. This is felt as an earthquake. The point at which these plates collide is called the focus of the earthquake. The surface of the earth above the focus is called the epicenter. The effect of the earthquake is greatest at the epicenter. अब देखिए जो outermost layer है अर्थ की वो एक पीस में नहीं है, एक्चुअली फ्रेगमेंटेड है, राइट? और जो हर फ्रेगमेंट है यानी जो हर पीस है उसको हम कहते हैं प्लेट. इन प्लेट्स को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स. ये हमेशा मोशन में रहती हैं, कंटिन्यू, और कई बार क्या होती है प्लेट्स कोलाइड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस या ट्रेमर्स फील किए जा सकते हैं. यही आपके अर्थक्वेक होते हैं. द पॉइंट एट विच दीज प्लेट्स कोलाइड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. द सर्फेस ऑफ द अर्थ अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट द एपिसेंटर. Some other causes of earthquakes are eruption of volcanoes and underground nuclear explosions. Sometimes meteors hit the earth's surface. This also causes earthquakes. अब देखिए आपका जो पॉइंट होता है इन प्लेट्स में जहाँ पे कोलाइड करते हैं वो आपका फोकस होता है अर्थक्वेक का, एंड फोकस के जस्ट अबव जो आपका पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर. तो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है एपिसेंटर पे. अच्छा, कुछ और कॉजेज भी होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, लाइक वोल्केनोज इरप्ट हो गए आपके, या कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया. और कई बार क्या होता है कि जो मीटियोर्स होते हैं वो अर्थ के सर्फेस को हिट करते हैं, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं. Measuring earthquakes. The study of earthquakes is called seismology. The scientists who study and research about earthquakes are called seismologists. The instrument or device that is used to measure the severity of an earthquake is called seismometer. Earthquake की study को कहा जाता है seismology, और जो scientists को study करते हैं उन्हें कहते हैं seismologist. और कोई जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो earthquake को measure करता है यानी earthquake की severity को measure करता है that is called seismometer. The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called a seismograph. A seismograph consists of a pendulum bob suspended with a string with an upside pen attached to the other end. The tip of the pen touches a roll of paper wrapped around a rotating drum fixed to the base of the instrument. A magnet is also fixed around the string to give it extra support. When tremors occur, the vibrating pendulum moves, causing the pen to record the vibrations on the paper under it. The record produced by a seismograph is called a seismogram. In 1935, Charles Richter, an American seismologist, developed a scale to measure the magnitude of an earthquake called the Richter scale. The readings on the Richter scale tells us the magnitude of the earthquake. अब देखिए आपके जो tremors आपके produce होते हैं, right? उन्हें हम कहते हैं seismic waves. इन waves को record किया जाता है seismograph. सिस्मोग्राफ में आपका क्या होता है कि एक पेंडुलम बॉब सस्पेंडेड होता है स्ट्रिंग के साथ, जिसमें एक अपसाइड पेन अटैच होता है दूसरे एंड पे. तो जो टिप होता है पेन का वो टच करता है एक रोल ऑफ पेपर को जो रैप्ड होता है किसी रोटेटिंग ड्रम में, जो आपके इंस्ट्रूमेंट के बेस से फिक्स होता है. मैग्नेट भी फिक्स होता है इस स्ट्रिंग के अराउंड, एंड जो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो जब ट्रेमर्स होते हैं तो जो वाइब्रेटिंग पेंडुलम है वो मूव करता है, जिसकी वजह से जिससे जो पेन जो है वो इन रिकॉर्ड्स करता है इन वाइब्रेशंस को ऑन द पेपर अंडर इट. अब जो रिकॉर्ड है आपके जो सिस्मोग्राम में प्रोड्यूस होते हैं उसे कहते हैं हम सिस्मोग्राम. चार्ल्स रिक्टर एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे. उन्होंने एक स्केल डेवलप किया था जिसका नाम था रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल में आपकी जो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है उसको रीड किया जाता है. तो देखिए जैसे आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में अगर 0 से लेके 3.9 है तो वो आपका माइनर होता है. और अर्थक्वेक इसमें क्या होता है कि जनरली नॉट फेल्ट बट रिकॉर्डेड, ये फील नहीं किया जाता है बट इनको रिकॉर्ड किया जाता है. अगर 4 से 5.9 है तो मॉडरेट होता है, जैसे कि इसमें क्या होगा कि शेकिंग होगा इंडोर आइटम्स का या थोड़ी सी रैटलिंग नॉइज हो जाएगी. 6 to 7.9 ये
बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से हेवी डैमेज हो सकता है। एंड 8.0 और मोर, इससे ज़्यादा तो ये मैसिव है, मैसिव, इतना मैसिव है कि ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। Earthquake prone areas or seismic zones. The area of stress in the earth where broken rocks slide past each other, causing a crack in the earth's surface. These are called fault zones or seismic zones. These are some weak zones where earthquakes are more likely to occur. Certain parts of India are very vulnerable to earthquakes. The central and western regions of the Himalayas are geologically active and hence more prone to earthquakes. This makes them a high-risk zone. Kashmir, Northeast, Run of Kutch, Indo-Gangetic Plains, Rajasthan, the regions of Maharashtra from Latur through Koyana, Ahmedabad to Uttarkashi are earthquake-prone regions. अब देखिए जो एरिया ऑफ स्ट्रेस है अर्थ में, जहाँ पे आपकी ब्रोकन रॉक्स जो हैं वो स्लाइड होती हैं और जिसके क्या होता है कि क्रैक हो जाता है अर्थ के सरफेस में, तो आपके फॉल्ट जोन्स बोल सकते हैं या हम सिस्मिक जोन्स बोल सकते हैं। तो ये कुछ वीक जोन्स हैं जहाँ पे आपका जो अर्थ क्वैक है वो आपका आता है, राइट। तो कुछ पार्ट्स हैं इंडिया में जैसे कि आपका हो गया, जैसे हिमालयन आपका जो रीजन है ये तो जियोलॉजिकली एक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा प्रोन है टू अर्थ क्वैक। इसके अलावा देखिए ये सारे ही जो एरियाज हैं दे ऑल आर अर्थ प्रोन एरियाज। अब देखिए आपको एक टेबल दी गई है जो कुछ अर्थक्वेक्स आए हैं आपके, जैसे 1991 में उत्तरकाशी में आया था तो इसका स्केल था 7.0, गुजरात में आया था 2001 में, इसका स्केल 7.7, 2004 रीजन इफेक्ट इंडिया 9.1। तो देखिए ये कुछ मेजर अर्थक्वेक्स आए थे इंडिया में जो अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, नेसेसरी प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। People living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern building technology can make it possible. Following are some ways to protect oneself and infrastructure. अब देखिए क्या होता है कि जो आपके earthquake prone regions होते हैं, कुछ necessary precautions वहाँ पे रखना पड़ता है। Before an earthquake, infrastructure in earthquake-prone zones should be designed to withstand tremors. In highly seismic areas, the use of mud or timber is better than using heavy construction material. Keep roofs as light as possible. All structural defects such as cracks in plaster in ceilings and foundation should be repaired. It is better if the cupboards and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. Leaky gas pipelines and defective electrical wiring should be repaired. Emergency numbers such as of the doctor, police, hospitals, etc. should be kept handy or easily accessible. A disaster emergency kit comprising a torch, medicines, rope, candles, matches, etc. must be kept ready. सबसे पहले तो देखिए आपके जो earthquake. A disaster emergency kit comprising a torch, medicines, rope, candles, matches, etc. must be kept ready. सबसे पहले तो आपके जो earthquake prone zones हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो ट्रेमर्स को विथस्टैंड कर सके। जो आपके बहुत ही ज़्यादा हाईली सिस्मिक एरियाज होते हैं वहाँ पे मड और टिम्बर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हेवी कंस्ट्रक्शंस का करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, और रूफ को जितना लाइट हो उतना ही रखना है। जो भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं जैसे क्रैक्स है आपका सीलिंग्स में या फाउंडेशंस, इनको रिपेयर करना चाहिए। और आपके जो कबर्ड्स हैं या शेल्व्स हैं बेटर है कि वो वॉल्स के साथ फिक्स्ड हो, ठीक है, जिससे कि वो इजीली ना गिर सकें। लीकी गैस पाइपलाइंस या जो डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको रिपेयर करना चाहिए। इमरजेंसी नंबर्स को हमेशा एक्सेसिबल रखना चाहिए, ठीक है। और जो आपका डिजास्टर इमरजेंसी किट है जिसमें आपकी ये सारे मटीरियल्स हैं उसको हमेशा रेडी रखना चाहिए। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, if you are at home, take shelter under a table and stay there till the shaking stops. Stay away from tall and heavy objects that may fall on you. If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. Do not use any electrical gadget. अगर आप घर के अंदर हैं तो आप किसी टेबल के नीचे शेल्टर ले लीजिए और तब तक जब तक कि शेकिंग ना स्टॉप हो। किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट से या किसी भी टॉल ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है। अगर आप बेड पे हैं तो एकदम से ना उठे, अपने सर को प्रोटेक्ट कर लें पिलो के साथ और कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट का यूज ना करें। If you are outdoors, find a clear spot away from buildings, trees and overhead power lines.
drop to the ground. If you are in a car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. Do not come out till the tremors stop. Do not use a lift during or immediately after an earthquake. Use stairs instead. अगर आप बाहर है तो कोई क्लियर सा स्पॉट ढूंढें जो कि आपका बिल्डिंग से दूर हो, आपका ट्री से दूर हो या कोई भी ओवरहेड पावर लाइंस ना हो. अगर आप कार या बस में हैं उससे बाहर ना आए. ड्राइवर को बोलें कि वो स्लोली चलाएं, राइट, और किसी क्लियर स्पॉट तक पहुंचे. जब तक ट्रेमर स्टॉप नहीं हो जाते हैं बाहर ना निकलें. आप लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे अर्थक्वेक के दौरान या उसके तुरंत बाद. स्टेयर्स का ही यूज करेंगे. लर्निंग आउटकम्स. रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस स्टैटिक चार्जेस. Presence and nature of charge is detected using an electroscope. Lightning is electrical discharge between the clouds. Some precautions need to be taken during lightning while at home or outside. Tall buildings are fitted with lightning rods. Causes of earthquake are sliding of tectonic plates, eruption of volcanoes, meteor strikes, and underground nuclear explosions. Earthquake of severity 7 or more on Richter scale are considered as major. Remember that. Earthquakes cause destruction of life and property, floods, landslides, and tsunamis. Necessary precautions need to be taken to prevent or minimize the loss during an earthquake. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.